First of all, I'll start with my basic introduction. My name is Aditya Pandey. I'm a chartered accountant by profession, and I have a post-qualification experience of 2.5 years almost. And right now, I am a co-founder member of a consultancy firm that is related to legal and professional services, which is CLAPS India. So we basically help businesses and startups to build their business from the scratch and provide the compliance related services to the running businesses as well. About this session, I would definitely tell you guys that this session would definitely be a combination of information and interaction. So would definitely hear from you guys as well. And now I ask my co-host to introduce himself and proceed with the session. So hello everyone. First of all, I would like to welcome all of you, and I would like to check if I am audible to all of you. Can anyone confirm? Yes, sir. Okay, thank you, Sakshi. So, thank you for the introduction, Aditya. Yeah. As you all know, I am Ankit Singh Chauhan, and I am co-founder of CLAPS India from legal department, and he is from the professional department. So, let's not take much of your time and let's get into the webinar. Okay. So first of all, as you can see, the title is Why the Time is Now. So for that, I have a little infographic for you all. Let's see. See, I've divided the session into these categories. We will be covering these today. Why time is now. Okay. So as you can see, there are three main reasons why this is the best time for you to start up your own business or anything you want. You can start right now because this is the best time, and I'll tell you why. So first of all, let me start with the first thing, that is government support. So as you can see, it's divided into four sections, that is Startup India, Stand Up India, MSME, and Atmanirbhar Bharat. So what is Startup India? You all know Startup India started way longer before, in 2016, when Government of India and PM Modi have introduced the Startup India scheme to us, in which all of you can register yourself if you have a unique idea. Unique in the sense that idea should be unique, that is not already existing. That's the only criteria that you needed to get your startup registered. And you can get enormous funding from Startup India, because the government of India is promoting way too much for the youth and people who want to do startups. If they have a unique idea and the finance is the barrier, then government is there to take care of it. Okay. Then we have the Stand Up India scheme. Stand Up India scheme is for basically for women entrepreneurs and SC/ST candidates that wants funds for their ideas. So this is limited to them only. We as males cannot have benefits from Stand Up India scheme. Then we come to MSME. MSME, as you all know, small, medium, and small, micro, and medium finance. That means if people who are trying to start their business can get them registered under MSME scheme, and there are some criteria for MSME that I would like you all to know. For a small enterprise, the criteria is up to 1 crore of investment or 5 crore of turnover. Okay. And for a small enterprise, the criteria is up to 10 crore of investment and 50 crore of turnover. And for medium enterprises, the criteria is 50 crore or the turnover should be up to 250 crore. I will not get into the details of MSME because Adit will explain to you the benefits and MSME whole in the part B of the seminar and webinar. Now get down to Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat is the latest announcement that the government of India just gave. इसमें आपका क्या रहता है कि जो भी sectors हैं, like I have a small PPT for that also. Let me share it with you. Just a minute.
Okay, now I cannot find the image relevant right now. So let me tell you, आत्मनिर्भर भारत आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि we are going to be self reliant, जो कि अभी हमारा इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है चाइना के साथ। हमारा इंपोर्ट जो चल रहा था वो बैन हो ही गया ऑलमोस्ट, काफी हद तक। काफी सारी एप्स बैन कर दी हैं चाइना से, और बेसिकली हमारा इंपोर्ट जो है उसको कम करना है। तो इसके लिए पीएम मोदी ने कहा है हमसे कि आप सेल्फ रिलायंट बनिए। जो चीजें हम अभी तक बाहर से मंगा रहे थे अब उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। आपको जैसे पता ही होगा कि अप टू मार्च, जब तक मार्च था, कोरोना का कोई सीन ऐसा नहीं था, तब तक क्या था कि हम लोग पीपीई किट 0 बना रहे थे पर डे। इतने सालों से आज तक टिल मार्च पीपीडी जो हमारी पीपीई है, पीपीटी किट, उसका प्रोडक्शन था ही नहीं इंडिया में। पर अब जो सिनेरियो है आत्मनिर्भर भारत के इंट्रोडक्शन के बाद, वी आर प्रोड्यूसिंग 2 lakhs पीपीई पर डे, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, किसी और दूसरी कंट्री पे रिलाय नहीं करना है फॉर इंपोर्टिंग गुड्स दैट वी कैन मेक आवरसेल्व्स। दैट्स ऑल फॉर आत्मनिर्भर भारत. Now let's come to the second reason why the best time for a startup is now. That is issues with China. So you all know that China क्या कर रही है हमारे साथ इस समय, और चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो हमारा ट्रेड्स में हो, चाइना हर तरफ से हम लोग को घेरने की कोशिश कर रही है, राइट? तो एज अ रिस्पॉन्स हमने क्या किया है, हमने उनसे थोड़े एक्सपोर्ट्स कम कर दिए, इंपोर्ट्स कम कर दिए। हमने उनसे कई सारी चीजें लेना बंद कर दिया जो हम पहले ले रहे थे, और जो हम भी एज अ पब्लिक कर रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट, हम और आप, उनकी एप्स यूज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो बैन कर दी कई चीजें, हम लोग भी हैं सोशल मीडिया पे करते हैं कि भैया नो चाइना एट ऑल, हम लोग कोई चाइनीज चीज नहीं खरीदेंगे। हम लोग दूसरे को भी एनकरेज करते हैं कि हम चाइना ना यूज करके अपना ही प्रोडक्ट यूज करें। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे चाइना इश्यूज से डील करते हैं और कैसे इंपोर्ट को कम करते हैं। अल्टीमेटली ये हमें करना है कि इसको डिमांड को कम करना है चाइनीज प्रोडक्ट्स की, और अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाना है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हमें बढ़ाना है तो इसका मतलब ये हो कि हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हमें प्रोडक्शन करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्लांट्स लगाने होंगे, दैट मीन्स हमें यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी होंगी, या जो भी हम स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप करनी होंगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमें इस समय काफी सारी चीजें देख ही रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल चल रहा है। तो जैसे चाइना जो इशू है वो हमारा एक सेकंड रीजन है कि हम इसको एज अ एडवांटेज यूज कर सकते हैं स्टार्टअप में। चाइना को हम लोग, इनफैक्ट चाइना से सिर्फ हमने इंपोर्ट कम नहीं किया है, बाकी कंट्रीज ने भी कम कर दिया है। तो उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो भी हम लोग कर सकते हैं अपने देश में बना के और बाहर बेच के। कई कंट्रीज हैं जो अब चाइना से डील करना नहीं चाह रही हैं। हम और आप उनको जो कहते हैं खाना पूर्ति करना, अगर हम और कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं जो चाइना प्रोड्यूस कर रही थी और उनको उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में बेचे एक अच्छे प्राइस पे, तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगी, करेंसी कैश इनफ्लो बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी हमारे पास इंडिया में। तो इस तरीके से हम चाइना से जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे, उनको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज का जो चाइना कर रही थी। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे जो कि अभी तक नहीं थी। चाइना का इशू चलिए पहले भी था, गवर्नमेंट सपोर्ट 2016 से चल रहा था, लेकिन अब जो चीज आई है वो पहले नहीं थी, दैट इज कोरोना वायरस। उससे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है ये समझना हमें पड़ेगा। तो आपको भी पता है कि पहले हम इतने अडेप्टिव नहीं थे, पीपल आर गेटिंग अडेप्टिव नाउ। इसका क्या मतलब है ये समझना होगा। पहले फॉर इंस्टेंस हम लोग कई चीजें प्रेफर नहीं करते जो अब कोरोना वायरस के बाद हम लोग करने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बायजूस और वेदांतु एप्स, और आप सब आई गेस इसमें से कई सारे लोग होंगे जो अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे या फिर प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग पहले रिलाय नहीं करते थे इन सब चीजों पे। कुछ हद तक ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन हम लोग इस पे फुली रिलाय नहीं थे कि हम लोग इसको एज अ मेन स्ट्रीम सोर्स बना सकते हैं। तो अब हमने उस चीज को अडेप्ट कर लिया है कि नहीं भैया, कोई और रास्ता नहीं है, यही करना होगा कुछ टाइम तक। और ऐसी सिर्फ एक चीज नहीं, कई चीजें हैं जो लोगों ने अडेप्ट कर लिया। इनफैक्ट लोग घर में रहना सीख गए हैं, पहले जो बाहर रहते थे।
तो ये सब चीजें क्या क्या है, अडेप्टिव नेचर तो है एक तरीके से। तो अगर आप कुछ सोच रहे थे पहले जो कि बहुत आपको लग रहा था कि नहीं पब्लिक इसको अभी अडेप्ट नहीं कर पाएगी या फिर वे अहेड ऑफ टाइम है, तो नहीं, अब ये टाइम है कि आप उस चीज को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया यूनिक था, आउट ऑफ द लीग था, या फिर लोगों की समझ के परे था, तो अब ऐसा नहीं है। अब आदमी सब कुछ समझने को तैयार है। इतने महीनों में हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि कैसे हम लोग अपना अडेप्टिव नेचर को इनहेंस कर सकते हैं और चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप यूज। और अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड चीज है एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स में से मेरा मतलब है कि किसी भी एक फील्ड में एंटर करने के जो रास्ते होते हैं, वो इस समय आपके पास एंट्री बैरियर्स आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई कंपनी है जैसे, या फिर आपको कोई फ्रेंड है और आप हैं, आपको पता है कि वो बंदा है आपकी सेम फील्ड में एंटर करने की सोच रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है कि मैं इस फील्ड में इस टाइम पे एंटर करूं कि ना करूं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, लोग खर्चा करने को तैयार नहीं है, मार्केट डाउन है। तो ये सब बैरियर्स हैं जो एंट्री के लिए आपने पढ़े ही होंगे, वो होते हैं कि जो बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स इन अ बिजनेस। तो इनको आप लेवरेज कर सकते हैं। हो सकता है अगला बंदा ना रेडी हो रिस्क लेने के लिए, लेकिन अगर आप उसके बिहाफ पे रिस्क लेते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होगा उसके ऊपर। इसी से हमारा लिंक्ड है लास्ट भी, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। इसमें कई सारे लोग हैं जो इस समय रिस्क लेने को विलिंग नहीं है। ये दोनों चीजें आप कोरिलेट करके समझिएगा, एंट्री बैरियर्स और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो है। एंट्री बैरियर्स जो हैं अगर उनको आप ब्रेक कर लेते हैं तो आपके पास होगा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। एंट्री बैरियर्स से आप में फाइनेंशियल और मेंटल, बस दो एंट्री बैरियर्स आपको जो इस समय करंटली सिनेरियो में। तो अगर थर्ड हमारा है लो एडमिनिस्ट्रेशन और रनिंग कॉस्ट। दैट मींस इस समय आपको पता ही है कि वर्क फ्रॉम होम कितना ट्रेंड में है, हर बंदा घर से काम कर रहा है या फिर करवा रहा है। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज दोनों ही घर पे ही हैं ज्यादातर। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडस्ट्री इज नाउ वर्किंग फ्रॉम होम। तो इसमें क्या है कि कई ऑफिस हैं जिनको जरूरत नहीं, जैसे टेक ऑफिस होते हैं, आईटी ऑफिस होते हैं, इनको इतना सच नीड नहीं है कि एक फिजिकल ऑफिस सेटअप करें, या फिर वेबसाइट डेवलपर्स या ऐप डेवलपर्स या बैकएंड सपोर्ट, बीटा टेस्टर्स, ये सब जो हैं उनको अगर उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था तो उनको जरूरी नहीं कि वो एक ऑफिस सेटअप करें। वैसे ही आपके पास भी इस समय ये ऑप्शन है कि आप इस समय बिना कोई फिजिकल ऑफिस सेट किए या फिर बिना ज्यादा हायरिंग किए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट पे। और इस समय सबसे बेस्ट टाइम है, इसलिए आप इसको भी लेवरेज कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अब आते हैं हम अपने चीपर ह्यूमन रिसोर्सेज पे। लाइक आई सेड, अभी हमारे पास एडमिन कॉस्ट और ये बहुत ही कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस समय इतनी जॉब्स की फायरिंग हुई है, कितने लोगों को निकाला गया है, काफी लोग इस समय जॉबलेस हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है उनके वेजेस पे। उनके पास इस समय वेजेस नहीं है तो वो लोग लोअर वेज पे भी काम करने को रेडी हैं। लोग यूजुअली स्विच करते हैं तो हायर वेजेस पे करते हैं, लेकिन इस समय सिनेरियो एकदम उल्टा है। इस समय लोअर वेजेस पे भी आदमी स्विच कर रहा है, क्योंकि मरता क्या ना करता। सीधी सी बात है, अगर वो आउट ऑफ जॉब है, अगर आप उनको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सैलरी भी ऑफर करेंगे, दे विल ग्लैडली एक्सेप्टेड। अब ये बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है तो है। अब आपको इसको फायदा कैसे उठाना है कि आपको ये नहीं करना है कि अब्यूज करना है किसी भी एम्प्लॉय को। आप उसको एक डिसेंट सैलरी देंगे, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और आपके लिए मन लगा के काम करेगा। इस चीज का आप फायदा उठाएं अगर आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो। लास्ट मैंने आपको बता दिया था मूवर्स एडवांटेज, अभी इन द फर्स्ट ऑफ योर लीग। तो इससे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो कि आप पहले आएंगे पहले पाएंगे। अर्ली बर्ड गेट्स द प्रे, सिंपल सी बात है। अब हम वापस आते हैं थोड़ा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्राइसिस है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनका रिवॉर्ड भी ज्यादा ही होता है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कुछ कंपनीज का जो क्राइसिस में ही सेटअप हुई थी, और आप सबने आई एम श्योर उनका नाम सुना ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारा आईबीएम, आईबीएम का नाम सबने सुना है। जनरल मोटर्स, शेवरले वाली, सबने सुना है। फेडेक्स, सबसे बड़ा जो अपना ट्रांसपोर्टेटर
है, उसको आपने नाम सुना है। HP, ये तो हो ही नहीं सकता किसी ने HP का नाम ना सुना हो। माइक्रोसॉफ्ट हो ही नहीं सकता आपने ना सुना हो। तो ये सब जो कंपनीज हैं कहीं ना कहीं ये सब क्राइसिस में ही सेटअप हुई थी, रिसेशन में ही सेटअप हुई थी। रिसेशन एक तरह का क्राइसिस है। ये सारी कंपनीज जो आज वर्ल्ड जो लीडर है अपने अपनी फील्ड में, इस सब के सब और कभी नहीं, इस रिसेशन यानी कि क्राइसिस में ही सेटअप हुई थी। तो आप भी एक रिसेशन का फायदा उठा के अपने एक, आपको नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन आप अपना 100% दें तो आप भी एक ऐसी कंपनी या LLC स्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि कल को फॉर्च्यून 500 में तो आ ही सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट A ऑफ द सेमिनार। पार्ट B विल बी कंडक्टेड बाय आदित्य, जिसमें हम थोड़े फिगर्स की बात करेंगे, MSME की बात करेंगे। सो लेट्स हैंड इट ओवर टू आदित्य। Thank you, Ankit, for the great explanation. So after understanding the criteria that why this is the right time to start up your business or initiate your startup, so I just want to hear from you guys कि आत्मनिर्भर होने क्यों जरूरी है? Why it is important to be आत्मनिर्भर? Can anyone drop their views on the chat box? or आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है? Why we are so much dependent on China? How much we are dependent on China? चाइना की इतनी डोमिनेंसी क्यों है एक ट्रेड इंडस्ट्री में हमारे लिए? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम थोड़ा फैक्चुअल वे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे चाइना में अगर आप देखो तो इन इंडिया हम लोग का जो FDI है फ्रॉम चाइना, इट इज 800 कंपनीज दैट हैव इन्वेस्टेड इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो चाइनीज कंपनी ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इससे साफ पता चलता है कि हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो इससे क्या होगा कि उनका FDIs यहाँ पे बढ़ेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं चाइना पे, जो कि हम लोग उसके रिपरकशंस देख रहे हैं, बॉर्डर इश्यूज पे देख रहे हैं। हम लोग ने कोविड टाइम पे भी ये देखा है कि चाइना ने बहुत ज्यादा डोमिनेंसी के साथ इस इश्यू को डील किया है। उसने कहीं से भी इस चीज को हार्मली डील नहीं किया है कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट डेट कि हाँ हम लोग की तरफ से ये गलतियां हो रही हैं। तो कोई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। एंड अदर वेल कि कहीं ना कहीं डोमिनेंसी भी बढ़ रही है जस्ट बिकॉज कि वी आर सपोर्टिव टू देयर बिजनेस हाउसेस एंड टू देयर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर सिर्फ बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ट्रेड की, तो यहाँ पे लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया का है फाइनेंशियल ईयर 1920 में, वो कितना यहाँ पे चाइना पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है। आप जैसे इंपोर्ट को देख सकते हो तो इंपोर्ट हमारा 14% है ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड वेयर इज एक्सपोर्ट इज ओनली कंप्राइजेस ऑफ 5.33%, जो कि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करता है हमारे इंडियन ट्रेड इंडस्ट्री में। अब अगर बात करें तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि इशू, 1 सेकंड, तो यहाँ पे इशू ये हो जा रहा है कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कितनी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए जानना ही जरूरी है कि जो बायलेटरल, ओके, so please confirm, am I audible to all of you? Yes, go on, I can hear you. Am I audible right now? Yes, you are. Yes, sir. Okay. Please go on. So basically let's talk about कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। इंडियन बायलेटरल ट्रेड विद चाइना इज $92.5 बिलियन। $92.5 बिलियन का ट्रेड है हमारा चाइना के साथ, जिसमें हमारा अराउंड $57 बिलियन का डेफिसिट है। यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है चाइना के ऊपर। जो कि हमारी स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में उनका डोमिनेंस है, जो कि हमारे स्टील प्रोडक्ट्स पे उनका डोमिनेंस है, हमारे ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स पे उनका डोमिनेंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझना है कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी हो गया है। एंड आफ्टर दिस पैंडेमिक जिस हिसाब से रिएक्शन है, जो बॉर्डर्स इश्यूज क्रिएट कर रहा है चाइना, तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डिपेंडेंसी और डोमिनेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे
अब ये आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है? तो आत्मनिर्भर इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे आ जाता है, पहली बात तो हमें डोमिनेंसी कम करनी है, प्लस जैसे कि अभी अंकित ने बताया कि आज की डेट में हमने बहुत सारी चीजों में अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया है। तो आत्मनिर्भर हमने अपनी पीपीई किट्स में जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोग ने अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया है, मास्क में, वेंटिलेटर्स में अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया है। तो यानी कि हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, बट कहीं ना कहीं वो हम लोग का डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर जा रहा है, या गाइडेंस हम लोग को नहीं मिल रही है। इस वजह से हम कहीं ना कहीं इस चीज में लैक कर रहे हैं कि हम उस पर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर बीइंग आत्मनिर्भर टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर कंट्री। तो आप जैसे कि जानते हैं आत्मनिर्भर मिशन 5 पिलर्स पे काम करेगा, जो कि इस कंट्री को, एंटरप्रेन्योर्स को या फिर जो भी बिजनेस हाउसेस हैं उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला है। तो 5 पिलर्स, जो कि पहला है आपका इकोनॉमी, दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न इंडिया को डिपिक्ट करे, जो मॉडर्न इंडिया की रिफ्लेक्शन को दिखाए। सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं वो हम लोग जो अडेप्टिव नेचर की बात कर रहे हैं, वो अडेप्टिव नेचर कहीं ना कहीं इसी टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे हम लोग के अंदर आ चुका है, तो वो सिस्टम में भी लाने की कोशिश की जाएगी। देन फोर्थ है हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हो कितनी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है इंडिया की। ऑलमोस्ट 67% ऑफ पॉपुलेशन यूथ को बिलोंग करती है, 15 टू 60 एज को बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा है किसी भी नई चीज के लिए, उस पे काम किया जाएगा। एंड फिफ्थ इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द फ्रीडम, द राइट्स एंड द ड्यूटीज। तो यहाँ पे ये सब चीजों का एक सेग्रीगेशन होने वाला है, इन 5 पिलर्स पे काम करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जो चाइना के साथ इश्यूज है हमारा, उसके चलते 59 एप्स को बैन किया है। नई एफडीआई पॉलिसी आ गई है नेबरिंग कंट्रीज को लेके, जहां पे इजिली कोई भी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उसको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। बट जो थर्ड पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, अगर हम बात करें ट्रेड की, कि इनके प्रोडक्ट्स क्यों चीप हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स इतने हैवीली क्यों मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो वहां पे फर्क आ जाता है स्किल डेवलपमेंट का। आप जैसे कि जानते हो कि चाइना अपनी पॉपुलेशन पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, उनको कोई एक टेक्निकल स्किल जरूर प्रोवाइड कराती है। तो ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि वो अपनी पॉपुलेशन को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ट्रेन करे, अपने एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करे, अपने लोगों को ट्रेन करे। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपकी डेमोग्राफी के बारे में, यूथ को ये कंट्री बिलोंग करती है। तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे, जैसे एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसके तहत आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपकी टेक्निकल स्किल्स पे काम किया जाएगा। बिकॉज टेक्निकल स्किल्स इज द नीड ऑफ एन आर। अगर आप स्किल नहीं सीखोगे, आप टाइम टू टाइम उसको रीस्किल नहीं करोगे, उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, और टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ उसको अपस्किल नहीं करोगे, तो आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, या मार्केट में उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इंडिया के लिए अगर आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज है कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे अपनी लोगों के लिए काम करे, जो कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे यूज कर रही है उस चीज को। जैसे कि अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा कि अब 6th स्टैंडर्ड से ये कंपलसरी कर दिया गया है, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चों के काम किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस चीज पे शुरुआत से ही ध्यान दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज तक आते आते हमारा यूथ एक टेक्निकल स्किल्स की तरफ सोच पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इंडिया अभी तक सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ही फोकस करता आया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे इतना फोकस नहीं किया है। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर जाते हैं। जो कंपटीशन हमें चाइना को देना चाहिए, जो एशियन कंट्रीज में हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से ले जा सके। अब मैं अंकित से बोलूंगा कि वो थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, और कौन कौन से सेक्टर्स पे अभी जो टाइम इज नाउ है उस पे हम लोग एक पुश दे सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही
Am I audible? Let me confirm again. Yes, sir. तो जैसे मैंने बोला कि अडेप्टेबिलिटी, अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई आई हैं जिनको अडेप्ट किया है, राइट? तो ऐसी अडेप्टेबिलिटी के ऊपर हम लोग एक चीज और सोचते हैं कि जो नए आइडियाज आ रहे हैं लोगों को, जो लोग नई नई चीजें कर रहे हैं, पहले आपने देखा होगा कि डिजिटल पेमेंट्स का 2014 तक ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था, राइट? लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद एक सडन स्पाइक देखा गया डिजिटल पेमेंट्स में और डिजिटल पेमेंट एप्स में या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब में। तो इन सब का रीजन यही था कि हम पहले इतना चीजों से कनेक्टेड नहीं थे, इन सब चीजों से हमने उनको अडेप्ट नहीं किया था पूरी तरह। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमने उसको यूज किया, और यूज ऐसा किया कि अब हम लोग वही यूज करते हैं ऑलमोस्ट। अब मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन एटीएम से कब निकाला हो पैसा। हर बार डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करता हूँ मैं ज्यादातर, आई गेस ज्यादातर लोग यही करते हैं। अब बात करें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इस चीज का फायदा उठा सकती हैं, तो आपने देखा होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, एडटेक्स, जिसका मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी टाइप्स की जो वेबसाइट्स और ऐप हैं, अब वो एकदम बूम पे हैं। इस समय पढ़ाई हो रही तो भैया वही लोग कर पा रहे हैं जो ये सब यूज कर रहे हैं। सेकेंडली एग्रीटेक, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स होते थे अब वो यूज नहीं हो रहे हैं, और कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनको फायदा उठा रहे हैं इस चीज का और एग्रीटेक प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। इनफैक्ट कई सारी ऐसी अब एप्स हैं जो आपको घर पे डिलीवरी दे रही हैं फार्मर से सीधे चीजें कलेक्ट करके। तो यहाँ पे फार्मर्स को भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, और रेट पे सामान मिल रहा है, उनको हायर रेट पे बेचने को मिल रहा है। और बीइंग एन एग्रीगेटर आपको जो फायदा हो रहा है सो अलग है ही। तो एग्रीटेक इज अनदर इंडस्ट्री जिसमें आप इस समय सोच सकते हैं और फ्यूचर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तीसरी चीज है, आपने अगर नोटिस किया हो तो इन दिनों स्टॉक मार्केट में एकदम बूम आ गया है। गोल्ड, सिल्वर, इसकी तो इन्होंने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया है अभी पिछले लास्ट मंथ में। तो अगर जीरोधा की रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 2 लाख अकाउंट सिर्फ जून के महीने में उनके खुल गए थे। दैट मींस लोग ये भी अडेप्ट कर रहे हैं। एसआईपीज का अगर ग्राफ देखें तो एसआईपी इतनी कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई, क्योंकि लोग अवेयर हैं कि इस समय मार्केट नीचे है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। अगर आप कोई परचेज करते हैं तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको लोएस्ट रेट पे चीज मिले। इसी के रिगार्डिंग लोगों ने इस समय एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, नहीं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो अगर इसी को हम लोग दूसरे एंगल से देखें तो आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं जो ई फाइनेंस के थ्रू आप अपने ऐसे कोई फर्म डाल सकते हैं जो एडवाइजरी करती हो या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मतलब आपको टेक्निक्स बताती हो या फिर इन्वेस्टमेंट करती हो। इस समय तो परसों अगर आपने देखा हो न्यूज में तो ऑनरेबल पीएम जी ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बहुत ही तवज्जो दी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को उन्होंने कहा है कि हम इनको इस सेक्टर को और फ्लोरिश करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बन पाए इंडिया में, जो कि इस समय बहुत शॉर्टेज पे है। इस समय कैश फ्लो बहुत कम है इंडिया में, तो उसको बूस्ट करने के लिए रूरल एरिया में स्पेशली जहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स अपना हाथ नहीं डालते हैं, वहां पे उत्कर्ष बैंक और आपका निधि कंपनीज, इस टाइप की माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है, बंधन बैंक, ये सब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो इनको और फ्लोरिश करने के लिए प्लस नई नई कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि माइक्रो फाइनेंस में हेल्प की जाएगी, तो आप उसमें भी सोच सकते हैं करने को। प्लस आप देखिए चाइना से इशू से रिलेट करें तो आप टेक्निकल मार्केट में उतर सकते हैं। इस समय टेक मार्केट बहुत हाई पे जाने वाला है इंडिया का, क्योंकि चाइना से अगर इंपोर्ट बैन होता है तो हम इंडिया में बनाएंगे, और इंडिया में कौन बनाएगा, हम और आप ही तो बनाएंगे। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आप इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, स्पाइसेस का प्रोडक्शन हाई कर सकते हैं, करने को बोला गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। आप यानी कि इसमें भी जा सकते हैं स्पाइस सेक्टर में। तो ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आपको बस ये सोचना है कि हम कैसे उस चीज को लेवरेज करें, किस चीज की डिमांड आने वाली है। ऐसे मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए, आप अपना कोई और भी ऑप्शन सोच सकते हैं। आपको बस ये सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो अभी इंडिया में नहीं बन रही है, या फिर इंडिया में बन रही है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं बन रही है, या फिर इंडिया में बन रही है तो महंगी बन रही है, तो आप उस चीज में घुस सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसमें ही जाएं मैन्युफैक्चरिंग में, आप सर्विस में भी जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया एडवाइजरी का। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो आप इस समय ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं।
प्लस मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एमएसएमई का, तो उसके रिगार्डिंग ये आप एक चीज देखिए जो अभी नया नया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसमें आपका क्या है कि जो आपका क्राइटेरिया था पहले, कई लोगों अच्छा कंफ्यूजन होता था कि हम जैसे माइक्रो उसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एमएसएमई के, तो स्मॉल में आ गए तो कैसे होगा, क्या हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे या फिर कोई हमें नोटिस भेजा जाएगा या हमें नोटिस भेजना पड़ेगा। तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आप माइक्रो में हैं, इस माइक्रो सेगमेंट में हैं, आपको स्मॉल सेक्टर में ये शिफ्ट होना है तो आप नहीं करेंगे, वो आप अपने आप हो जाएंगे जब आपका या तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ के ऊपर जाए या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के ऊपर जाए। सिमिलरली अगर आप इस समय स्मॉल में बिलोंग करते हैं और आप मीडियम में शिफ्ट हो रहे हैं, अपवर्ड्स शिफ्ट यानी कि, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के ऊपर जाता है और जो आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ के ऊपर जाता है, तो आप अपने आप ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे मीडियम में। और अगर आप मीडियम की बात करें तो उसका आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 250 करोड़। तो ये कंफ्यूजन लोगों को रहता था कि अगर हम चेंज हो रही है मेरा सेगमेंट तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बकायदा कि अब आप टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरिया है उसको आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आप स्विच कर लिए। सिमिलरली डाउन ट्रेंड का भी हम पता कर लेते हैं। अगर डाउन ट्रेंड करना यानी कि आप मीडियम से स्मॉल या स्मॉल से माइक्रो में जा रहे हैं, तो वो जो क्राइटेरिया है उसमें आपको दोनों चीजें फुलफिल करनी है, दैट मींस इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों ही इस क्राइटेरिया, सपोज मीडियम से 50 करोड़ से 50 करोड़ के नीचे जाता है तो आप अपने आप ही स्मॉल में शिफ्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो में कम होना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर आप अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो कैटेगरी में आपको दोनों चीजें फुलफिल नहीं करनी है उनमें से, यानी कि इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर। लेकिन अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आपको दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आपका कम होना चाहिए और आपका टर्नओवर भी कम होना चाहिए। ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था जो मैं देना चाह रहा था। और दूसरी एक और चीज है जो गवर्नमेंट ने अभी भी बताई है कि अब जो आपका जीएसटी है, एक पैन पे, इसको पढ़ लीजिए, इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड दैट ऑल यूनिट्स हैविंग जीएसटी नंबर अगेंस्ट पैन विल बी कलेक्टिवली ट्रीटेड एज वन एंटरप्राइज। यानी कि अगर आपका एक फर्म है, एक पैन है, तो उस पर एक ही जीएसटी आप अप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज, नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, हाउएवर एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और बोथ मे बी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक फर्म का सिर्फ एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। जो पहले लोग करते थे कि अपनी एक फर्म का कई सारे रजिस्ट्रेशन करा लिए, कोई सर्विस का, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो अब नहीं होगा। अब सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। दैट मींस एक पैन पे एक ही फर्म रजिस्टर होगी, उसमें एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको का, और जो आपका टर्नओवर भी देखा जाएगा और इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा वो कलेक्टिवली इन पे सारे आपके फर्म्स पे कलेक्टिवली देखा जाएगा, जिससे आपका पैन लिंक्ड है। तो आप सोच रहे हैं कि मेरा एक फर्म में तो टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक पैन पे आपके सारे रजिस्टर्ड हैं तो उनको कलेक्टिवली एज अ होल देखा जाएगा। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था इन्फॉर्मेशन जो अभी लेटेस्ट आई है। बाकी आपको एमएसएमई के थ्रू गाइड करने के लिए आदित्य थोड़ा और कुछ बताना चाह रहे हैं, प्लीज उनकी बात आप सुन लेते हैं। थैंक यू अंकित। ओवर टू यू आदित्य। तो एमएसएमई के बारे में जानते हैं। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये हमारा एक फुल फॉर्म हो गया। बट क्या कोई बता सकता है एमएसएमई क्या है? क्योंकि बहुत लाइमलाइट में रहा है ये पैंडेमिक के टाइम पे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है इसके लिए, और बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस में भी एमएसएमई का नाम लिया गया था। तो यस, तो यहाँ पे एमएसएमई बेसिकली इतना लाइमलाइट में क्यों गवर्नमेंट ने इसको डाला है? बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 45% ऑफ आवर टोटल जीडीपी। 45% ऑफ टोटल जीडीपी का मतलब है एक तरीके से बैकबोन ऑफ द इंडियन ट्रेड हो गई है। तो एमएसएमई को बहुत ज्यादा फोकस हमेशा गवर्नमेंट रखती है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर बात करें तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ये एक नया रिवाइज डेफिनेशन की जो रिफॉर्म पॉलिसीज आई हैं, उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन एक नया रजिस्ट्रेशन आया है जो गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत आपको इसमें री रजिस्टर करना है जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं, और जो फ्रेश यूनिट्स हैं उसको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन में ही अब रजिस्टर करना पड़ेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे
चीजें क्या हो जाती हैं कि आपको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर करना है या फिर एग्जिस्टिंग एमएसएमईज को रजिस्टर करना है, उसके पहले जानते हैं कि एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एमएसएमई के की बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जहां पे आपको सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप एमएसएमई बिजनेस होल्डर हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसी है और बैंक्स को भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन या फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। सेकंड मेजर बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको बाय द टाइम लग रहा है कि आपका ब्रांड एक अच्छा डेवलप हो रहा है, आपका ब्रांड नेम क्रिएट हो रहा है, आपका ब्रांड लोगो क्रिएट हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसमें आप कोई ऐसे ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, पेटेंट कराओगे, ट्रेडमार्क कराओगे, तो वो भी आपको कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किया जाता है अगर आप एक एमएसएमई होल्डर है। सेकेंडली, आपको इलेक्ट्रिसिटी में उसमें रिबेट मिलती है। फिर आपको जो अभी रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसके अंडर जो 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट टेंडर होंगे, उसको ग्लोबल टेंडर की डेफिनेशन से रिमूव कर दिया गया है। तो यानी कि जो 200 करोड़ तक के टर्नओवर होंगे, उसमें एमएसएमई ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एमएसएमई को ही प्रायोरिटी पे रखा जाएगा वाइल सिलेक्शन। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई को मेजर मेजर मिलते हैं। उसके बाद अगर आप कोई इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, आप कोई ऐसे फ्रेश आइडियाज लाते हैं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको फंड भी करेगी और आगे फ्यूचर में अगर आप उसका आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं तो आईपीओ लॉन्च करने भी आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि आप स्टॉक मार्केट लिस्टिंग भी करा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से कॉर्पस फंड भी क्रिएट किया हुआ है जिसके तहत आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एमएसएमई के, जिसके थ्रू आप रजिस्टर करने के लिए एक बात सोच सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये आत्मनिर्भर से पूरा पूरा लिंकेज रखता है। आत्मनिर्भर इज नॉट अ कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन एक चलाया था। उसके तहत ये ही एक नई डेफिनेशन कह लें या रिवाइज डेफिनेशन कह लें, उसके तहत ये आत्मनिर्भर को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें से ये माना गया है कि एमएसएमई को सबसे ज्यादा बूस्ट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा सबसे ज्यादा बूस्ट? क्योंकि स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ही इस कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। अगर कलेक्टिवली हम लोग सब साथ में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम सब एक बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं और उसको एक एक्शन में भी ला सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया कि एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एमएसएमई एज अ होल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बात करें, जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी कॉस्ट यहाँ पे बियर नहीं करनी है, पूरा पूरा फ्री रजिस्ट्रेशन होना है। ये पोर्टल पे पेपरलेस है और आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पूरा पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ये उद्यम registration.gov.in से आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर से ही आप ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब आधार नंबर पे बात करें तो अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटर है या फिर आप सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, यानी कि आप सिर्फ अकेले बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपके आधार पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो आप जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, मतलब जो मेन पर्सन होगा, उसके आधार पे भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप सेल्फ डिक्लेरेशन ही दोगे, जो मैंने अभी आपको अंकित ने आपको कैटेगरी बताई कि माइक्रो कैटेगरी की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इन्वेस्टमेंट के, टर्नओवर के, स्मॉल के क्राइटेरियाज होते हैं और मीडियम कैटेगरीज के क्राइटेरिया होते हैं। तो वहां पे उस क्राइटेरिया के तहत आप सेल्फ डिक्लेरेशन देकर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट आफ्टर 31 मार्च 2021 जीएसटी मैंडेटरी होगा आपकी फर्म को, पैन मैंडेटरी होगा आपकी फर्म को, और तभी आप उसी डेटाबेस से वो लोग आपके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को लिंक करके अपना डेटाबेस अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि मेन चीजें ये है कि आप पहले तो सिर्फ डिक्लेरेशन दोगे, आफ्टर वाइल उसके बाद आपका जो भी जीएसटी पे डेटा जाएगा, जो भी इनकम टैक्स में डेटा जाएगा, वहीं से ही आपका डेटाबेस लिंक होगा और वहीं से सारा डेटा रिट्रीव कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे कैसे
कैलकुलेशन कैसे होगी प्लांट एंड मशीनरी की और टर्नओवर की, इस पे बात कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए सिंपल से बोला है कि जो आपके आईटीआर फाइल होंगे उसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का आप डिटेल दोगे वो वही कंसीडर किया जाएगा। इनिशियली अगर आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं किया है, फ्रेश यूनिट हो, तो मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करके ही उसको आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे। बट आफ्टर फ्यूचर ईयर्स में वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से ही सारा डेटा रिट्रीव करेंगे। उसके बाद अगर बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर में एक्सपोर्ट्स का जितना भी आपका टर्नओवर होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स के टर्नओवर को हटा के जो आपका डोमेस्टिक टर्नओवर है सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा आपके टर्नओवर कैलकुलेशन में। तो वो भी अभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दोगे, एक प्रोस्पेक्टिव एक प्रोजेक्टेड टर्नओवर आप बता दोगे। मीनवाइल उसके बाद आपको फ्यूचर ईयर्स में आपका जो भी जीएसटी रिटर्न्स है वही आपके डेटाबेस में लिंक होके आपकी टर्नओवर को अपडेट करते रहेंगे। तो जैसे कि आप थर्ड पॉइंट पढ़ोगे, द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस व्हिच डू नॉट हैव पैन विल बी कंसीडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन basis for a period of up to 31st March 2021 and thereafter PAN and GST will be mandatory। तो जैसे कि मैंने बताया कि 31st मार्च 2021 तक तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करके रजिस्ट्रेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट उसके बाद आपको पैन और जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा और आपको वहीं से सारा अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपडेट करते हुए चलना है। अगर आप बात करें एग्जिस्टिंग एमएसएमई की कि जो 1 जुलाई 2020 पे से पहले रजिस्टर हो चुके हैं, उनके लिए क्या कंप्लायंसेस आई हैं, उनके लिए ये बोला गया है कि 31 मार्च 2021 तक आपको री रजिस्टर करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होल्ड कर रहे हैं उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा अप टू 31 मार्च 2021। तो वहां पे एग्जिस्टिंग एमएसएमई को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप तब तक अपना पुराना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होल्ड कर सकते हो, बट उसके बाद मैंडेटरी होगा और आईटीआर और जीएसटी फाइल करना भी जरूरी होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एमएसएमई के। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हो। Anyone? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? तो I भी guess आपकी हमारे पास आज थोड़े स्टूडेंट्स ज्यादा हैं rather than businessmen, तो थोड़ा उनको डाउट कम होगा इसमें। But I just want to tell you guys that कि जो भी हम लोगों ने स्टार्टअप इनिशिएटिव के अंडर में जो आपको जो भी डिटेल्स दी हैं ये आप एक बार सीरियसली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो यही प्रेडिक्ट करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये आइडिया नहीं है, तो आप किसी को भी ये नॉलेज शेयर कर सकते हो कि या फैक्ट्स पे बात कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपसे शेयर करी वो आप बता सकते हो, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो और उनको मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारी जॉब्स भी गई हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जॉब्स पे कंटिन्यू किया जाए या फिर, या संकल्प तिवारी। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मतलब फंड एलोकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आजकल। अगर हम लोन की तरफ जाते हैं या मतलब जैसे कि आपने माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताया, तो अगर हम फाइनेंस के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी भी कुछ मांगते हैं। तो अगर मतलब एज ए स्टूडेंट या एज अ मतलब बच्चे हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें सिक्योरिटी के पास मतलब के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है मतलब फिलहाल, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब क्या गवर्नमेंट ने कुछ निकाला है स्टूडेंट्स के लिए या कुछ ऐसा स्टूडेंट लोन या कुछ, उस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए, स्टूडेंट लोन जैसा तो कुछ नहीं है, बट अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं एमएसएमई की, तो एमएसएमई में बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं, जो कि कोलेटरल फ्री लोन की बात करते हैं कि आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, ये नहीं, और इंटरेस्ट रेट भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाएगा। बट जहां तक आप बात करो कि तो बैंक्स के एंड अगर मैं सोचूं तो बैंक भी ऑब्वियसली एक क्रेडिट वर्दीनेस देख के ही आपको लोन या फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अगर वो लोन आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चेक करेंगे, तो एनपीएस का भी एक प्रॉब्लम इशू जो गवर्नमेंट अभी फेस कर रही है, जो कंट्री अभी फेस कर रही है, वो एक इशू भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है, आप माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो
कि अगर आपकी खुद की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपने ITRs नहीं फाइल किया, अभी आपकी कोई इनकम जनरेशन का ऑप्शन नहीं है, तो आप गारंटर भी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपके फादर है, आपके फैमिली मेंबर में कोई गारंटी दे सकता है, कोई गारंटर बन सकता है, उस बेसिस पे भी बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। तो वहां पे क्रेडिट वर्दीनेस एक मेजर क्राइटेरिया है, बट उसको आप गारंटी से या फिर कोई भी एक सिक्योरिटी से आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। Okay. तो एज यू कैन ऑन सी, सब लोग को पता चल गया होगा इतनी देर में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी ज्यादा इजी हो गई आजकल। गवर्नमेंट ने हर तरीके से आपको हेल्प करने की सोच ली है। आपको फाइनेंस चाहिए मिल जाएगा, आपको असिस्टेंस चाहिए मिल जाएगा, आपको आइडियाज चाहिए उसके लिए भी सेमिनार्स गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है अपनी तरफ से, आपको स्किल चाहिए उसके लिए स्किल डेवलपमेंट अलग से चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंड तो आपको मोर ओवर जो एप्स बैन हुई हैं, 59 एप्स बैन हुई हैं, उसमें आपने जाना है कि टिकटॉक भी बैन हो गया है, जो इंडिया का बिगेस्ट मार्केट है। उसकी वजह से For good. बहुत अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है वैसे भी इंडिया में। तो उसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप कुछ और बिजनेस आइडिया सोच सके या फिर कुछ और स्टेप ले सके, तो वो भी एक बहुत बड़ा पुश होगा आत्मनिर्भर की तरफ। एनी टिकटॉकर इन द हाउस? गुड। Sir, I want to know something. सर जैसे बिजनेस स्टार्टअप्स एंड ऑल आजकल यूथ काफी इंटरेस्टेड है, बट जो जॉब्स के लिए ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, सो इस कोविड के बाद तो लाइक ऑलरेडी जिनकी जॉब्स कई लोगों को फायर कर दिया है, सो इसके बाद आई वांट टू नो जो हम लोग जो हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जब हम इंटरव्यूज के लिए बैठेंगे या हमें जॉब्स के लिए जब अप्लाई करना पड़ेगा? So Ankit, you want to answer or सॉरी, do you want to answer it or shall I proceed? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जॉब्स का देखिए, अगर एक चीज आपको हमेशा से पता होगी, आपको ये अग्री करोगे इस चीज पे कि एक टर्म है जॉब सिक्योरिटी। दैट्स अ फिक्शनल टर्म, Yes, वो sir. एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इनफैक्ट अब पहले तो लोग कहते थे कि अगर सरकारी नौकरी है तो सब ठीक है, अब तो वो भी नहीं है भाई, उसकी भी कोई गारंटी नहीं बची, उसमें भी इनफैक्ट ले ऑफ्स हुए हैं। तो मैं कभी भी प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने भी इसमें इंक्लूड कर दिया है काफी कुछ। हाँ, तो अब जॉब्स के ऊपर कई लोग का हाँ इंटरेस्ट होता है कि नहीं भैया जॉब करेंगे, ज्यादा सिक्योर है, थोड़ा वेतन कम है और ऐसा है अपना फिक्स्ड वाला आएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपके मन में होगा स्टैंड अप इंडिया के बारे में जानने का। मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि नहीं आप जॉब्स नहीं करिए, लेकिन जॉब्स का आपने देख लिया कि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर यहीं पे अगर आपके पास मैं ये नहीं कह रहा कि इस पूरे सिनेरियो में बिजनेसेस सफर नहीं करे, लेकिन उनके पास एक मौका है अपने आप को रिस्टैब्लिश करने का, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। अब यही समय है कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं अपने पूरी तरीके से, और जॉब्स बी जॉब मेकर, नॉट अ जॉब टेकर। बाकी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आदित्य विल आंसर। बिकॉज देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जो इंटरव्यू की आपने बात करी साक्षी, कि इंटरव्यू पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग ने डिस्कशन किया कि अगर हम लोग अभी जो अंकित ने फैक्टर डिस्कस करे थे कि चीपर ह्यूमन रिसोर्स, अभी इस पैंडेमिक टाइम पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो कंपनी हैज अ एडवांटेज कि उनको पता है जो कैंडिडेट आया है वो कहीं ना कहीं एक नीडी पर्सन है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप पे वैसे ही स्टार्टिंग से प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट बिल्कुल, कर दे विल देगा। ट्राई टू एक्सप्लॉइट। और एक जो स्टार्टअप की जो एज होती है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही स्टार्टअप के बारे में सोचते हो, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हो, रादर देन आप जॉब के बारे में सोचते हो, तो मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप इस टाइम पे जॉब पे जाने का सोच रहे हो या जॉब प्लान कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको स्ट्रगल बिल्कुल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एंटिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये पता है कि दिस पर्सन इज नीडी, और उसको वैसे ही प्रेशराइज करके, जैसे भी वो कॉम्पनसेशन पे, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पे वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो जो भी वर्क प्रोफाइल होगा उस पर आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल दोनों स्टेज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप में प्रेशर नहीं है, स्टार्टअप में स्ट्रगल नहीं है, इनिशियल फेजेस में दोनों में स्ट्रगल है। बट कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप स्टार्टअप पे फोकस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो इनिशियल स्ट्रगल है वो जब दोनों में फेस करना है, यहाँ पे आप अपने बॉस होगे, वहां पे आप किसी के एम्प्लॉय होगे जो आपको टाइम टू टाइम एक प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। बट अगर आपको ये भी आइडिया लेना है कि हाँ इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है,
या फिर जिस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपको उस इंडस्ट्री का आइडिया लेना है, दिस इज नॉट दी बैड ऑप्शन कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए जॉब पे जाना चाहते हो, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो या फिर उस इंडस्ट्री को समझना चाहते हो, तो आप वहां जाके फिर आप प्लान कर लो कि हाँ मुझे मार्केट का आइडिया है एंड देन आई कैन स्विच टू माय ओन बिजनेस। तो वो भी एक ऑप्शन है। बट हाँ, जॉब प्रोफाइल पे इस समय पे आपको एम्प्लॉयर एक एडवांटेज पे है कि वो एम्प्लॉय को एक प्रेशर सिचुएशन में डाल सकता है। तो मैं इसको सम अप करूंगा। जो 4 प्रॉब्लम्स मैंने नोट करी वो है आपकी डिफिकल्टी टू गेट अ जॉब, क्योंकि हायरिंग ज्यादा हो नहीं रही है। लो पे, आपको ज्यादा इनकम इस समय जनरेट नहीं करके देंगे जॉब, क्योंकि वो लोग को पता है कि आपको जॉब चाहिए तो किसी भी ऑन अपॉइंटेड रेट पे आप कर लेंगे ज्वाइन। थर्ड, आपको उसी लो सैलरी में बहुत ही ज्यादा काम कराया जाएगा, जैसे कि मैं कई लोगों को अभी भी जानता हूँ जो कर रहे हैं। इनफैक्ट जिनका शिफ्ट 8 घंटे की होती है तो आज 12 घंटे काम कर रहे हैं, जस्ट टू गेट देयर जॉब सेफ। उनकी जॉब जाए ना बस इसलिए। एंड फोर्थली, नो सिक्योरिटी एट ऑल। जैसे मैंने पहले कहा, सिक्योरिटी तो तब भी नहीं है, आप 12 घंटे भी काम करिए, कोई सिक्योरिटी नहीं कि आप अपनी जगह बचा पाएंगे। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, साक्षी। Yeah, sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू साक्षी। प्लेजर। सो शैल वी सम इट अप, और किसी और को कुछ पूछना है? I'll take that as a no. ओके, आदित्य, आपको कुछ पूछना है या फिर बताना है? no, I just don't yeah, we have received one message. Okay, thank you Sankalp, it's a pleasure answering your queries. Basically, I hope that we have explained you well that why this is the right time to initiate your business. And if you have any query, you can reach out to us on our Instagram page, on our Facebook page, and we'll provide you the links. And definitely, we'll require your feedback. What are our improvement points? किस पे हम improve कर सकते हैं? कैसे हम और better कर सकते हैं webinar को, आगे आने वाले future webinars को? तो ये सब we'll require that from you. And thank you so much for joining, guys. And hope to see you soon. Thank you. Yeah, you guys have been a wonderful audience. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Sakshi. So I guess this is the time to say goodbye, Bye bye. everyone. Bye.